Hare Nama, Hare Nama Eva Kevalam, Kalo Nasteva, Nasteva, Nasteva Gatiranyata. जी भाई जी, माता जी। बोलिए माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। Excellent class as always माता जी, with very good pastimes to connect. And जैसे आप बता रहे हो ना, that is also a very interesting method of getting the information. मुझे particularly अच्छा लगा ब्रह्मा जी ने बानासुर को when he wanted to give that boon, वो थोड़ा careful हो गया because of the हिरण्यकशिपु experience. ऐसा जब आप बता रहे हो, it stays in the mind, Mataji, and makes it very interesting also. I really love that. Hare Krishna, Hare Krishna. Can you hear me, Mataji? Yes, yes, Mataji. Now clear. Okay, okay. मुझे क्विकली टेकअवेज फ्रॉम अ समरी, आपने ये सेवा वृत्ति एंड भोग वृत्ति के बारे में कहा। सो लाइफ इज मेंट फॉर सेवा वृत्ति, उसके लिए हनुमान जी का एग्जाम्पल आपने दिया। एंड भोग वृत्ति एंड क्या हुआ एंड में, एंड सेम रावण का भोग वृत्ति, उसका सर्वनाश हुआ। सो वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड ये डिफरेंस एंड सेवा वृत्ति में वी हैव टू यूज आवर लाइफ। इनफैक्ट मुझे इस श्लोक का भागवतम का इस श्लोक का केम टू माय माइंड दैट जीवा को ये मटेरियल बॉडी के अबव होना चाहिए, बट हम सब ये बॉडीली नीड्स यानी भोग वृत्ति we are engaged, but we have to understand that the purpose is to ask questions for the soul, about the soul and relationship between the jivatma and paramatma. So 1.2.8 of Bhagavatam, Dharma Swanishtitah Pumsam Vishwaksena Katashu Yaha Na Utpadayati Yadi Ratam Shrama Eva Hi Kevalam. We've always heard the last line Shrama Eva Hi Kevalam, but a pura shloka, I just wanted to recite Mataji ki the whole point ye for the human being is to provoke attraction for the message of the personality of Godhead. ये नहीं हो रहा है तो it is useless labor यानी श्रम एवं केवलम. So that was my takeaway from this. And आपने वो 3 types of mercy के बारे में कहा, that we have human life, प्रामाणिक गुरु या संप्रदाय के we देयर एंड भगवत प्रेम के बारे में। यहाँ आपने कुलशेखर आलवार का, आपका फेवरेट है कुलशेखर आलवार, बिकॉज आप कोट करते हो कुलशेखर आलवार का। सो मैंने आई हैव अ बुक अबाउट हिम, आई विल जस्ट रीड। ओ जैसे आपने कहा वो सांप को भी छोड़ दिया बिकॉज द होल पर्पस वाज वो प्रधान को टू टीच, एंड वो मैसेज बहुत अच्छा है। आई जस्ट वांटेड टू शेयर दैट। यहाँ लिखा हुआ है कि so Kulashekar Alvar magnanimously pardoned the ministers for their nefarious activity committed out of ignorance. इसके बाद जो मैसेज वो दे रहा है वो बहुत अच्छा है। He said, "My beloved ministers, you were attracted by the material happiness and got ensnared by its illusion. Shake off this worldly attachment and come to enjoy the divine bliss." So ye whatever I thought, it's very well connected with this shloka, कि how हमें ये material attachment को छोड़ के, illusion को छोड़ के वो divine bliss के की ओर हमें जाना चाहिए। In fact आपने again भगवत प्रेम के लिए you gave the example of Kanyakumari ka, that was also a very interesting story, Mataji. When I was small, I've actually been to Suchindram. So I remember Kanyakumari, Suchindram, all those places. It brought back flashes of that. I mean, jana hai abhi, but whatever, it got me, memories of those places, Mataji. Thank you for that. So, mera takeaway ye hai ki the process of devotional service is joyful. ये रूपा जी ये purport में कह रहे हैं कि
हमें ये मटेरियल तो मिserable है, एंड मटेरियली इन्फेक्टेड पीपल आर ऑलवेज मिserable, पर डिवोटी के लिए इवन दिस मटेरियल वर्ल्ड बिकम्स अ वैकुंठा और द स्पिरिचुअल स्काई. सो हमें वी हैव टू अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इसमें डिवोशनल प्रोसेस में जॉय है. इट इज नॉट समथिंग what to say, very arduous or strenuous, but it's a joyful process. And dusra, हमें how to detach ourselves. One bit is 18.54 का रेफरेंस भी purport में दिया है प्रभुपाद जी. वो ब्रह्मभूता स्टेट में आना चाहिए. एंड व्हाट इज दैट स्टेट? जहां हम स्टोन एंड गोल्ड को इक्वल वैल्यू देते हैं. एंड ऐसा स्टेज में वो द हाईएस्ट पर्सनालिटी इन द मटेरियल वर्ल्ड टू एन एंट, वो सब एक जैसा लग जाएगा फॉर अ डिवोटी. एंड ये प्रोसेस तो वेरी डिफिकल्ट है, बट द पॉइंट इज वी एंगेज इन डिवोशनल सर्विस, इट इज स्टिल पॉसिबल. मुझे एक और कोट मैंने पढ़ा which I thought I will share there. Although it talks about bad association, I thought I'll connect it with materiality. तो हमें ये कैसे बैलेंस करना है उसका, और इसका इफेक्ट क्या है. To try to increase devotion without decreasing bad association. यानी जो कुछ material है is like trying to light fire and pouring water at the same time. So ये बहुत I thought was a very strong message, at least for me. ये दोनों साथ नहीं चलेगा. हम slowly materiality को छोड़ना चाहिए and get in this path, because they technically cannot go coexist. अगर हम इस path में जाने का इच्छा है, and if we want to do that, which is actually the goal of life. And then ये last sentence also I thought was very interesting. Prabhupada ji कह रहे हैं कि the perfection of this Sankhya Yoga culminates in devotional service unto the absolute truth. So I thought I will just refer to Bhagavad Gita 5.4, because हमें कैसे ये सांख्य योग को समझना चाहिए. The verse goes like this: सांख्य योगो पृथक बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः एकम अपि आस्थितः सम्यक उभयोर विन्दते फलम. Translation ये है कि only the ignorant speak of devotional service as being different from the analytical study of the material world. दोनों का गोल क्या है? विष्णु. Therefore, in essence, there is no difference between the two, because the aim of both is Vishnu. So हमें ऐसा सांख्य योग को समझ के we have to get into the path of devotional service. Again, thank you Mataji for an excellent class. Hare Krishna, Dandavat Pranam. हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम माता जी. माता जी बहुत बहुत सुंदर एक्सप्लेन किया आपने. स्पेशली तो वो जो कुलशेखर अलवार का जो स्टोरी का जो मोरल था, वो बहुत सुंदर माता जी आपने बताया. और ये बात भी कि जब कृष्ण हमारे जीवन में आते हैं तो दूसरा कोई वहाँ पे नहीं रह सकता. वो एक दोहा है ना, प्रेम गली अति साकरी जाके जिसमें रहे ना दो. ये एक तो हृदय में कृष्ण रहेंगे या फिर आपका भौतिक सुख रहेगा. दोनों साथ में नहीं रह सकते. या तो भौतिक सुख रहेगा, फिर कृष्ण नहीं रहेंगे. माता जी बहुत सुंदर सुंदर पॉइंट्स आपने बताए. हरि बोल माता जी, हरि बोल आपके लिए. हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम. जी कुंजेश्वरी माता जी. Thank you Mataji, Dandavat Pranam, Dandavat Pranam. हरे कृष्णा माता जी, बहुत सुंदर क्लास. अभी जो अध्याय है कि किस तरह भगवान कृष्ण की सब सारे ऐश्वर्य है, इसमें सब चलाए जा रहे हैं. और उसमें जो अपने पॉइंट बताया कि प्रभुपाद जी कह रहे ये जो विग्रह है ये मेरे है, इसके रिलेटेड में मुझे अभी आप सुना रहे थे तो भी याद आया कि राधा रानी का पैरेट सुखदेव गोस्वामी जो राधा रानी के पास थे, तो जब भी वो भगवान कृष्ण के राधा रानी ने बहुत सारे नाम उन्हें सिखा के रखे थे पूरे के पूरे. जब भी वो बोलते थे रास बिहारी तो राधा रानी को वो याद आती थी. जब भी बोलते थे गिरधारी तो कृष्ण गिरधर पर्वत गिरिराज उठाए हुए, ऐसे सब राधा रानी को वो सब लीलाएं याद आती थी. तो राधा रानी उनसे बहुत खुश थी. लेकिन जब
प्रत्यक्ष भगवान कृष्ण उनके यहाँ आते हैं और सब सखियाँ उनकी इतनी प्रेम से सब सेवा विया करती है और ये सब करते हैं और तब सुखदेव गोस्वामी कुछ नहीं करते और तब राधा रानी के वो ध्यान में आते हैं और जब राधा रानी उन्हें बोलती है जब भगवान कृष्ण जाते तो आपने क्यों नहीं भगवान कृष्ण से उनके चरण स्पर्श किए उनसे कुछ तो बोली को ये क्या है उन्हें वो सिर्फ वो नाम रटे थे कृष्णा के अलग अलग लेकिन उनके पास वो भाव नहीं था कि उन्हें पता नहीं था कि कृष्ण क्या है इसलिए फिर उन्हें नीचे भेजा जाता है हम सबको पता है फिर वो शिव पार्वती जी की अमर कथा सुनते हैं और फिर कैसे शिव जी उनके पीछे लगते हैं फिर वो बद्रिकाश्रम में जाते हैं और व्यास देव जी के पत्नी के मुंह से गर्भ में जाते हैं वो हमें पता तो इसका मतलब ये है कि उन्हें सिर्फ वो रटते थे लेकिन उन्हें कृष्ण क्या है उनका स्वरूप क्या है वो पता नहीं था इसलिए फिर उन्हें यहाँ पर राधा रानी जी बोलती है कि आप जाओ और कृष्ण क्या है उनका क्या स्थिति ये सब सुनो और फिर जब भगवान वो शिव जी से सुनते हैं तभी उन्हें पता चलता है और फिर व्यास देव जी फिर से दीक्षा देते हैं और फिर वो परीक्षित महाराज से कितना सारा हो जाता है तो इसीलिए जो यह अध्याय है ये अभी आया है तीसरे स्कंद का और जब भी हम भागवतम का पठन करते हैं ये कितना इससे हमें सब समझ में आता है और फिर हम वो भगवान के 11वें अध्याय तक जाते हैं इससे मुझे ये हो गया रियलाइज की किस तरह प्रभुपाद जी ने हमें सिर्फ बोलना नहीं सिखाया हरे कृष्ण महामंत्र या सिर्फ तोती के तरह रटना नहीं है हमें जानना है कृष्ण क्या है और आपने जो बोला कि ये जो विग्रह है मेरे दिए हुए ये बहुत 100% सच है प्रभुपाद जी की वजह से हम जानते भी है कि कृष्ण क्या है उनकी पूजा क्या है बहुत सी बार ये भी प्रश्न आता है ना कि ये कलयुग में है सिर्फ नाम संकीर्तन जरूरी है अर्चा विग्रह की पूजा नहीं है लेकिन हम तो अर्चा विग्रह की पूजा भी करते हैं इसकी वजह से हम जान पाते हैं कि कृष्ण क्या है और इसीलिए हम जब भगवान कृष्ण सामने आ जाएंगे तो पता चलेगा यही कृष्ण है हरे कृष्ण हरे कृष्णा माता जी। बहुत सुंदरता से माता जी आपने बताया। आपने कुछ बोला तो मुझे भी कुछ याद आ जाता है, तो शेयर करती हूँ आपके साथ कि जैसे भी माता जी बोल रहे हैं ना कि सब राधा कृष्ण की सेवा में सब लोग लगे हुए, सारे गोपिकाएँ हैं। तो ये सारी गोपिकाएँ हैं, इन गोपियों के अंडर मंजरियाँ होती है। तो ये सभी क्या करते हैं, राधा कृष्ण का मिलन करवाते हैं। ये कैसे मिले एक-दूसरे से, है ना? इनका विरह ना हो, इनका मिलने का जो स्थान है वो निश्चित कर देते हैं। तो सारे इनके मिलाप की सेवा में सारे लोग लगे रहते हैं। तो ये जो मंजरिया है, ये मंजरिया ही ये सेवा कैसे करनी है? ये सेवा कैसे की जाती है? भगवान का चिंतन कैसे किया जाता है? इनकी जो प्रेम भरी लीलाएँ हैं, वो हमारे तक पहुँचाने का काम कौन किए हैं? ये तो लीलाएँ, ये मंजरियों द्वारा हमें पता चली हैं। जैसे रूप गोस्वामी है, तो रूप गोस्वामी ललिता सखी की मंजरी है और ये मंजरी है, ये हमारे लिए रूप गोस्वामी के रूप में आए। तो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, हमारे भक्ति विनोद ठाकुर, फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, ये सब मंजरियाँ है भगवान की। तो इसी वजह से ये हमें उन दिव्य लीलाओं का आस्वादन करवा पाए कि क्या होता है गोलोक धाम में। क्योंकि वो जो व्यक्ति वहाँ पे रह के आया है, जिसने उन लीलाओं को देखा है, जो व्यक्ति उन सेवाओं में लगा है, वही तो उसका आस्वादन करेगा, वही तो हमें उसकी जानकारी दे पाएगा। तो हम कितने भाग्यशाली जीव हैं कि जो साक्षात वहाँ पे उस सेवा का, उस रस का अनुभव करके आए हैं, उनके माध्यम से हम सुन पा रहे हैं, है ना? यदि हमने इस अवसर को भी गँवा दिया, अभी भी हमारी रुचि नहीं आई, अभी भी हमारा इंटरेस्ट नहीं हुआ, तो हमारे जैसा तो कंगाल और हमारे जैसा तो दुर्भागी तो और कोई हो ही नहीं सकता। प्रभुपाद भी बोलते थे, प्रभुपाद अपने शिष्यों को कहते थे कि यदि मैं कौन हूँ, यदि तुम जानोगे, तो तुम सहन नहीं कर पाओगे। तो प्रभुपाद भी कोई साधारण नहीं थे। यदि उनके गुरु मंजरी है, तो प्रभुपाद भी क्या हो सकते हैं? लेकिन प्रभुपाद ने ये कभी भी व्यक्त नहीं किया। तो ये
जो हमें गोलोक धाम के दिव्य दर्शन बता रहे हैं, तो वो वहाँ की ही कोई पर्सनैलिटी है, जो हमें ये सब कुछ बता रही है ताकि हम भी उसी तरह से भगवान की सेवा करें, उसी दिव्य माध्यम से हम भगवान की सेवा करें। तो भगवान की सेवा करने के लिए सबसे पहले तो हम श्रवण करते हैं, है ना? हम सुनते हैं, हम सारी लीलाओं को सुन रहे हैं। तो ये जो सुनना है ना, तो ये सुनना ही वैष्णवों के कानों का अलंकार बन जाता है। हम अलंकार के रूप में क्या पहनेंगे? हम कोई ज़ेवर वगैरह नहीं पहनेंगे। तो हम जब हमारा श्रवण बढ़ता है, तो ये श्रवण ही हमारे कानों का कुंडल बन जाता है। हम कुंडल धारण करते हैं भगवान की लीलाओं का। फिर हमारे गले में जो हम माला पहनते हैं, तो हम माला कौन-सी पहनते हैं? तो हम माला पहनते हैं त्रणादपि सुनिचेन, सरोरपि सहिष्णुना, अमानिन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। तो एक वैष्णव है, इसका ये सबसे बड़ा आभूषण है, इसके गले में ये सबसे बड़ी माला है कि वो हमेशा नम्र, विनम्र रहता है, हमेशा दूसरों को मान-सम्मान देता है और अपने मान-सम्मान की ज़रा भी परवाह नहीं करता और उसका सतत कीर्तन चलता रहता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारे जो आचरण है, ये साक्षात ये मंजरियाँ हमें आके सिखा गई है और हमारे लिए वो सब छोड़ भी गए हैं कि किस तरह से हमारा आचरण होना चाहिए। तो जब भी हम उपदेशामृत पढ़ रहे हैं, हम भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ रहे हैं, तो हमारा भाव हमें ये ध्यान में रखना ही होगा कि हम साक्षात जो भगवान कृष्ण की सेवा में मंजरी है, उस मंजरी द्वारा लिखित उस रस का हम अनुभव कर रहे हैं। तो जब हम उस माध्यम से पढ़ेंगे ना, तो सच में उसका 1% तो अमृत हमारे जीवन में हमें ज़रूर प्राप्त होगा। ये भाव हमारे अंदर ज़रूर होना चाहिए। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। थैंक यू माता। बहुत मिस कर रहे थे आपको, तो बहुत अच्छा रहा आज का क्लास। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। मैं ऑलरेडी लेट हो चुका है, तो टेक मच टाइम। सभी लोगों ने बहुत सारे पॉइंट्स कवर किए। मैं खाली एक चीज इसमें बोलना चाहता हूँ। आज का जो श्लोक है, इसमें अगर हम लोग देखते हैं तो इसमें एक चीज जैसे उसको टच करना चाहता हूँ। यहाँ पे ये कहा गया है कि भक्ति, विरक्ति और आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति, जब वो बहुत ही तीव्रता से जब भक्ति करता है तो ये सब प्राप्त करता है। और वो प्राप्त करके एक बात, मतलब वो कपिल मुनि कहते हैं कि हमें परमात्मा पे ध्यान करना चाहिए और ये याद रखना चाहिए कि भगवान जो है मतलब सेम भी है, अलग भी है। तो कभी कभी जो निराकारवादी है वो इसको गलत तरीके से ले सकते हैं कि हम लोगों को जो है अपने अंदर ध्यान करना चाहिए। तो ये जो श्लोक है, ये उस चीज को निगेट करता है कि भगवान या परमात्मा, जैसे इस श्लोक में कहा गया है, व्हाट इज दैट वर्ड, आत्मा, प्रत्येक आत्मा। तो वो लोग इसको आत्मा यानी वो कुछ अलग मीनिंग निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रभुपाद जी की कृपा की वजह से हम लोग समझ पा रहे हैं कि ये एक मतलब जीवात्मा की नहीं परमात्मा की बात हो रही है। एंड दैट परमात्मा, यहाँ पे कपिल मुनि बता रहे हैं कि दैट इज सेपरेट, मतलब एक्चुअल भगवान कृष्ण भी है, ये उनका एक स्वरूप है, तो वो सेम भी है, अलग भी है। ये एक बहुत ही जो है अच्छा पॉइंट है हम लोगों के लिए। जब कोई मायावादी मिलता है तो वी कैन कोट दिस श्लोका एंड वी कैन टेल हिम। तो ये एक चीज आई थॉट जस्ट कवर ऐड करना था। बाकी इट वाज अ वंडरफुल क्लास माता जी, एज यूजुअल आपने इतने सारे लीलाएं कवर करी, तो थैंक यू फॉर दैट। आई मिस्ड यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। ऐसे ही आते रहिए माता और अपना संग देते रहिए। श्री कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। बहुत सुंदर प्रभु जी आपने पॉइंट एक्सप्रेस किया है। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। तो यहाँ पे विराम करेंगे प्रभु जी। यस, विल स्टॉप हियर। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा पंचाकल्पतरुभ्यश्च सिन्धुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पतितानां पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। उपस्थित सभी वैष्णवों की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी। हरे कृष्ण, प्रणाम।